नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो आपके सामने एक वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, उसमें और कुछ डिटेल्स ऐड ऑन करने वाली हूँ, जो कि वैसी ही डिटेल्स होंगी, वैसी ही बोल्ड डिटेल्स होंगी, वैसी ही ब्लंट डिटेल्स होंगी, जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को पूरी तरह से सुना, समझा और सपोर्ट करा। मैं चाहती हूँ कि अब इस पूरी वीडियो में एक वॉइस नोट मैं डालने वाली हूँ। वो वॉइस नोट बंगाली में है। आप जो बंगाली हैं और जो बंगाली समझते हैं उनके लिए आसान होगा। जिनको नहीं समझ में आती है, आई विल एक्सप्लेन कि उस वॉइस नोट में क्या समझाया गया है। बट ये वॉइस नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो काइंडली पहले उस वॉइस नोट को प्लीज़ अच्छे से सुनिए, समझिए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही बड़ा एक एविडेंस मान सकते हैं, या अगर चाहे तो इसको एक मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके का षड्यंत्र मचाया जा रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि हमारे एविडेंसेस को भटकाने के लिए, या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। एनीथिंग, आप लोग कुछ भी इसे समझ सकते हैं, बट मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। क्योंकि यहाँ पर एक लड़की बात कर रही है, शोना मुखर्जी, जो कि हॉस्पिटल के बाहर रुककर ही बात कर বন্ধুরা, रही है, और वो আমি कुछ সোমা अपने বলছি, तरफ से সোমা बताने की মুখার্জি। कोशिश कर रही है। এত एंड কষ্ট दैट्स হচ্ছে ভিতরে इनसाइड যে स्टोरी, হসপিটালে सो বসে থাকতে प्लीज़ পারছি না, আমাদের সব लिसन टू दिस ডাক্তাররা वेरी সবাই খুব केयरफुली। ডিস্টার্বড। আজকে তো ওপিডি বন্ধ রাখা হয়েছে। তোরা জানিস সমস্ত ঘটনা শুনলাম, যা মানে সত্যিকারের ঘটনা, যেটা আরজি করের ভিতরের যে ডাক্তার তারা তাদের বন্ধু বান্ধব মারফত এটা ছড়িয়ে মানে এসছে আমাদের কাছে। অ্যাকচুয়ালি যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে, আমি শুনে তো মানে বিশ্বাস করতেও নিজেকে কেমন লাগছে রে। প্রত্যেকটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে, বিশেষ করে কলকাতার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর প্রিন্সিপালরা, ডিপার্টমেন্টাল হেডরা, প্রিন্সিপালরা বিশেষ করে, তারা পাশ করানোর জন্য স্টুডেন্টদের কাছে রীতিমতো টাকা নেয়। যেসব স্টুডেন্টরা, ইন্টার্নরা, পিজিটিরা যারা ভালো করে ক্লাস করে না বা থিসিস তারা জমা দেবে, পিজিতে তো থিসিস জমা দিতে হয়, তো যারা এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ার ফাইনাল পাস করবে না সাপ্লি পাইয়ে দেবে, ইন্টার্নের কমপ্লিশন দেবে না, ইন্টার্ন হওয়ার পর কমপ্লিশন না দিলে তারা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবে না, এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা নেয়। সমস্ত জায়গাতেই এটা আছে। এর মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্টের থেকেও নিকৃষ্টতম হচ্ছে সন্দীপ ঘোষ, প্রিন্সিপাল, যে তোর আমাদের কি বলে আরজিকর মেডিকেল কলেজে। সেখানে ভাব যে ওনার একটা বিশাল নেক্সাস ছিল, যাতে উনি বেশ কিছু ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ এদেরকে দিয়ে ওই নেক্সাসটা চালাতেন। তারা ওখানে একটা সেক্স র্যাকেট চালাতো, তারা একটা ড্রাগ র্যাকেট চালাতো। ড্রাগ র্যাকেট মানে ওই যে ওটাতে বলেছে না, ড্রাগ মানে শুধু ওই হেরোইন আর ব্রাউন সুগারের ড্রাগ খাওয়া বা মদ খাওয়া নয়। ড্রাগ মানে হচ্ছে যে কম দামি, কম টাকায় যে ওষুধ পাওয়া যায়, যে ওষুধ, ওষুধ না জল ভগবান জানে, সেই ওষুধের মানে কোটি কোটি টাকায় যে টেন্ডার বেরোতো, সেই ওষুধ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা, সেই সমস্ত টাকার একটা বড় অংশ যেত পার্টি ফান্ডে। বুঝতেই পারছিস তাহলে। সেই জন্য পার্টির একদমই কাছের উনি, পার্টির মানে একদম খোদ মানে ওপর লেভেলের একদম আসল জায়গাকার কাছে। তো এবার উনি এই যে নেক্সাসটা চালাতেন, তাতে রীতিমতো কোন ইন্টার্নকে উনি পাশ করাবেন, কোন পিজিটিকে উনি থিসিস কমপ্লিট করাবেন, সেগুলো সব ভয় দেখিয়ে টাকা নিতেন। আর তার হয়ে কাজ করতো ওই ইন্টার্ন হাউস স্টাফের একটা পুরো বড় নেক্সাস। এবার এই মেয়েটির যে পিজিটি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো, সে তার থিসিসটা কমপ্লিট করাবে না বলে হুমকি দিচ্ছিল। সে এটা জানতে পেরে গিয়ে বলেছিল যে আমি এরকম কোনোভাবেই মেনে নেব না, আমি এর এর বিরুদ্ধে আমি যাব এবং আমি এর বিরুদ্ধে সব ফাঁস করে দেবো। তখন তাকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হচ্ছিল। এটা চলছিল লাস্ট 6 মান্থস ধরে। 6 মাস ধরে তাকে হুমকি দেওয়া, তার প্রতি মানে বেশি বেশি প্রথমের দিকে কি করছিল, অত্যাচার করছিল। মানে কিরকম, বেশি বেশি করে নাইট ডিউটি দিচ্ছে, অ্যাট এ স্ট্রেস 36 আওয়ার্স ডিউটি, বেশি বেশি করে নাইট, বেশি বেশি করে খাটানো। এবং এগুলো সব জানে ডিপার্টমেন্টাল হেড, চেস্টের যে ডিপার্টমেন্টাল হেড সেও জানে, সিনিয়র পিজিটিরা সবাই জানে। প্রিন্সিপালের নির্দেশেই হচ্ছে এবং ওনার নেক্সাসের ছেলেমেয়েরাই কাজ করছে। তারা 6 মাস ধরে এটা করেছে। করার পরেও যখন ওকে আটকাতে পারেনি,
তখন কি করেছে, ওই দিনকে ওরা ঠিক করেছে যে দিনটাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে, সেদিন কতখানি প্ল্যান্ড এবং গট আপ গেম দেখ। সেই দিন ওই ঘরে ওই সেমিনার রুমে প্রত্যেক দিনই 4 তলার আরও অনেকেই যারা সিনিয়র পিজিটি বা জুনিয়র পিজিটি তারা কিন্তু বিশ্রাম নিতে যেত, অনেকেই ওই ঘরে যেত। সেই দিনকে ও একা ওকে বলেছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ওকে একা রেখে এসেছে, বাকিরা কাউকে যেতে দেয়নি, বলেছে ওই ঘরে আজকে ঘটনা ঘটছে, মানে কাজ হচ্ছে, ওই ঘরে কেউ যাবে না। ওই ঘরে সেই দিনকে ওর সাথে যখন খাওয়া দাওয়া করেছে বাকি 4 জন, সেই 4 জনের মধ্যে একটি মেয়ে পর্যন্ত ছিল। সে কিরকম মেয়ে চিন্তা কর, এরা ডাক্তার না জানোয়ার জানি না, আমি জানোয়ার বললেও জানোয়ারদের অপমান করা হয়, কারণ জানোয়ার সমাজে এরকম কাজ হয় না। তো ডাক্তার না কি আমি বলতে পারবো না। সেই ইন্টার্ন মেয়েটি আরেকটি ইন্টার্নের গার্লফ্রেন্ড। তো তার সাথে ওই পিজিটি মেয়েটি প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে তারা তো হুমকি টুমকি দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে তারা বলেছে তুমি ঘুমো। এবার ও তো আর জানে না, ভালো মনে শুতে এসেছে। তারপরে তারা গিয়ে মদ টদ খেয়েছে, 7-8 জন মিলে চড়াও হয়েছে। এবং তোরা জানিস যে প্রথমে তার হাত দুটোকে দুপাশে 2 জন ধরে রেখেছে এবং সেই কাজে সেই মেয়েটিও সাহায্য করেছে, ইন্টার্ন মেয়েটি। आई होप 2 জন आप लोगों ने ওকে अच्छे পা से इस দুটোকে টেনে वॉइस জরাসন্ধের नोट को মতো सुना ছিঁড়ে होगा ফেলেছে, মানে एंड ছেঁড়ার মতো করে जिनको টেনেছে, नहीं যাতে समझ में পেলভিক आया বোন उनके लिए ভেঙেছে, मैं बता दूं कि গলার ये বোন ভেঙেছে, सोना মানে मुखर्जी কি बोलकर বিপর্যস্ত, कोई মানে বিধ্বস্ত, लड़की है কি जिसने নৃশংস वॉइस অত্যাচার नोट করেছে। पे ये ওকে सारी উল্টো बात দিক করে कही है। শুইয়েছে, পিঠের जहाँ ওপর तक দিয়ে বুট ऐसा করে হেঁটে लग গেছে, रहा है कि মাথাটাকে पहली এমন पहली থেঁতলেছে যে लाइन মানে में उसने স্কাল ये ফাল कहा है রাপচার হয়েছে। बोंधुरा এই एंड সমস্ত করার उसके পরে बाद में শ্বাসরোধ ऐसा लग করে रहा है তাকে कि जैसे वो মেরেছে। किसी মেরে दोस्त के साथ তারপরে बात আরও कर रही है। যেটা तो ये আরও मेरे लिए ভয়ঙ্কর, डबल যে একটা মৃত चीज़ মানুষকে हो रही है। মিনিমাম आई ডিগনিটি एम দিতে नॉट জানে না। प्रिटी वेल তারা श्योर নিচে कि এসে ये দেখেছে ওই সঞ্জয় তখন किस বসে तरीके का মদ वॉइस খাচ্ছিল नोट है, অন্য क्योंकि আরো हम গ্রুপ जब ডিস্টার্বদের किसी সাথে। दोस्त के साथ बात करते हैं तो हम সঞ্জয় हेलो ছেলেটার সাথে, बोंधुरा তার কাটা नहीं সঞ্জয় बोलते বলতো ওরা, ওকে বলে डेफिनेटली। ফল गाई। तो মানে ये ওর थोड़ा सा একটু मुझे ওইসব আলুর कंफ्यूजिंग দোষ लगा। আছে, हो ও सकता है कि যত্রতত্র वॉइस যখন नोट তখন में इसको रिकॉर्ड किया প্রস্টিটিউট गया है एंड এলাকায় যায়। এবার দেখেছে যে जिस একে দিয়ে सूत्र যদি के একটা রেপ हवाले से করিয়ে मुझे দিতে ये পারি তাহলে मिला है ঘটনার तो মোড়টা उन्होंने অন্যদিকে मुझे ঘুরে ये যাবে। वॉइस नोट এইবার भेजा ওকে है। বলেছে যা, तो हो सकता है সেমিনার ऐसे, রুমে आई তোর डोंट জন্য नो। রেখে এসেছি, যা बट তুই এবার গিয়ে मैं কাজ बताना করে দিয়ে আয়। चाहती हूँ ও जिनको नहीं এসে समझ ওই में आया ডেড है বডিকে या রেপ कुछ করেছে मेरी भी मिस्टेक हो तो যাতে তার प्लीज़ आई एम सॉरी, ভ্যাজাইনাতে बिकॉज সিমেंट बंगाली पाওয়া इज़ যায়। नॉट दैट साउंड टू मी ऑल्सो। मैं हर एक चीज़ को তো এবার मतलब এই इतना भी হচ্ছে, नहीं बोल सकती कि मैं প্লিজ मास्टर আমি हूँ নাম করে ফেললাম সব बंगाली কিছুই। समझने में। तो কতজন कुछ আমি যে भूल मेरी নামগুলো तरफ से পাঠিয়েছি भी हो এই সব सकती है। जितना ডাক্তাররা, मुझे এরা समझ সব में आ रहा জড়িত है, জানিস। दिस गर्ल इज़ কিন্তু सेइंग কেউ कि কোনো প্রমাণ নেই, প্রমাণ इस লোপাটের জন্য। बच्ची के সেদিনকে साथ ওই जो ইন্টার্ন हुआ এবং है, ডাক্তাররা जो যে ওইখানের गैंग रेप যে हुआ है, जो বাথরুমটাকে मर्डर হাত हुआ পা है ধুয়েছে, उसका, রক্ত ধুয়েছে, उसकी बहुत बड़ी সেইটাকে वजह 7 है তাড়াতাড়ি संदीप প্রমাণ घोष। লোপাটের क्योंकि জন্য संदीप घोष ওই जो দেওয়ালকে ভেঙে इस দিয়ে पूरे তার अस्पताल के মানে ওই जो বাথরুমের कॉलेज के জায়গাটাকেই डीन ভাঙতে हैं, হচ্ছে ओদের। जो ওখানে নাকি एक्स ওরা डीन রুম हैं, বানাবে, কালকে उन्होंने দেখেছিস তোরা उन খবরে। उसके আর বেশি उन्होंने বলতে नहीं बोलना পারছি না, चाहिए इतना। মানে তোরা रिस्पेक्ट তো सबाই उनके প্রোটেস্ট लायक नहीं করিস, है वो আমরা তো আমাদের कमीना। দিক থেকে করছি, কিন্তু तो उस কিছুই कमीने হবে ने না, এই পোড়া एक्चुअली দেশে अपने কিছুই হবার इस নেই, हॉस्पिटल শুধु में एक ভেতরে रैकेट ভেতরে चलाया দুমড়ে हुआ था, দুমড়ে কষ্ট सेक्स পাওয়া। रैकेट আর चलाया हुआ আগামী था, जिसमें প্রজন্মের वो যে ডাক্তাররা ये तक বেরোবে, कर रहा है তারা যে कि ইন্টার্ন वो বা डेड পিজিটি बॉडीज বা का এই भी যাদের কাছে म्यूट আমরা करके যাব ब्लू ভবিষ্যতে, फिल्म्स बनाता है। তারা কি ये मैं आपको ডাক্তার না ऐड কি ऑन আমি बता জানি रही না। हूँ কি कि वो নিয়ে क्या তাদের কাছে আমরা तक যাব আর मतलब কি করে বা कितने আমাদের हद পরের तक वो প্রজন্মকে गंदा আমরা आदमी है। সুরक्षিত आई एम सो রাখবো। सॉरी, मेरी ज़बान ना ज़्यादा फंबल कर रही है क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है ना, तो इतना क्लियर बोलना पॉसिबल नहीं है। ये कोई स्क्रिप्ट चीज़ तो नहीं है कि मैं ये रट के आपको बोल रही हूँ। तो ये जो संदीप घोष है उसने सेक्स रैकेट चलाया हुआ है। वो ब्लू फिल्म्स बनाता था हॉस्पिटल के अंदर। ब्लू फिल्म्स में इंटर्न्स को शामिल करता था, उन्हें धमकाता था कि उनको जो थीसिस देनी पड़ती है, जो जैसे हमारे में प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट हो या पीजी स्टूडेंट्स जो होते हैं उन लोग को थीसिस देनी पड़ती है। आप लोग जो डॉक्टरी पढ़ रहे हो उन्हें ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के लिए। तो थीसिस जमा नहीं करेंगे या फिर थीसिस जमा करने के बावजूद उनको फेल कर दिया जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ब्लू फिल्म में भी शामिल होना पड़ेगा, या उनके रैकेट्स जो उनका जो एक नेक्सस चलता है उसके अंदर आपको शामिल होना पड़ेगा, आपको सहयोग देना पड़ेगा, आपको उनके गंदे कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये करो, अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दो और हम आपको पास करवा देंगे। आप भले कंपटीशन में बैठे या ना बैठे, आप अच्छे इंटर्न हो या ना हो, आप काम अच्छे से करते हो या ना करते हो, बट आपको डॉक्टर की डिग्री ज़रूर मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। तो ये तो हमें पता ही है कि पैसे लेकर हुआ है ये सारा चीज़। बट संदीप घोष के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं
और अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं एंड मैं आपको बताऊंगी कि उसके पास और क्या चीज़ें आ रही हैं। बट इस पर्टिकुलर जो वॉइस नोट मैंने आपको सुनाया उसमें ये बताया गया कि नेक्सस के बारे में इस लड़की को सब कुछ पता चल जाता है। ये बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और वो 5.5 साल 10 साल अपनी मेडिकल में पढ़ाई करने के बाद अपने माँ बाप के खट्टे हुए पैसे, मतलब कितना खटनी करके ऐसे गरीब लोग पैसे एक एक पैसे जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इकलौती बेटी, उसके ऊपर इतने सारे पैसे डालकर इन्वेस्ट करके उस बेटी को एक अच्छा नाम, एक अच्छी जगह, एक अच्छा स्टेटस दिलवाने के लिए वो माँ बाप कितना खटते थे और खट के उस बेटी को पढ़ाया लिखाया। और सेकेंड ईयर में वो बच्ची अपना पढ़ाई कर रही थी डॉक्टरी के लिए, जूनियर डॉक्टर थी। उस बच्ची के साथ ये घटना हुई एंड संदीप घोष के जैसे कुछ कमीने लोगों ने ऐसा काम किया एंड बताया जाता है कि ये पिछले 6 महीनों से ऐसा उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ जा रहा था, क्योंकि ये लड़की सब कुछ जान गई थी और उसने कहा था कि मुझे सही रास्ते से पढ़ाई करने दो, मुझे सही रास्ते से इंटर्नशिप करनी है, मुझे प्लीज़ दिक्कत मत लाओ इन सब चीज़ों में। अगर ऐसा होगा तो मैं आपका पर्दा फाश कर दूंगी। और उसके मुंह से शायद तक धमकियाँ निकली, जैसे हमारी दिव्या भारती ने साजिद नाडियाड वालों को धमकी दी कि तुम अगर दाऊद के साथ हो तो मैं तुम्हारा पर्दा फाश कर दूंगी। और उसी की वजह से संजय नाडियाड ने उसे ड्रग्स खिला खिलाकर उसे फेंक दिया और कहा गया कि दिव्या भारती ने सुसाइड करा। तो वैसा ही केस, आई एम सॉरी मैं इतनी जंबल हो जाती हूँ, आई एम सॉरी। मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती, आप लोगों को मेरा नेचर पता है। सो इस गर्ल को, इस बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार 6-7 महीनों से हो रहा था। उसे पर्टिकुलरली 36 घंटे की तो शिफ्ट सबको ही मिलती है। मैंने जैसे कि पहले कहा कि शी वॉज़ नॉट द ओनली वन जिसको 36 आवर्स की ड्यूटी करने मिले, लेकिन एक इंसान को हर बार एक ही नाइट शिफ्ट, तब ये चीज़ अ मैटर ऑफ पॉइंट टू बी नोटेड वाला हो जाता है कि बार बार मुझे ही क्यों नाइट शिफ्ट मिलती है। वेल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू नाइट शिफ्ट ऑफ 36 आवर्स कंटिन्यूसली। आप काम करे जा रहे हो, जिसकी वजह से सेमिनार रूम में जो गद्दे रखे जाते थे उसमें जूनियर हो सीनियर हो हर कोई थोड़ा आराम करने जाता था। ऐसा नहीं था कि वही एक लौती थी जो पहली बार उस सेमिनार हॉल में, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी। वो लोग वहाँ पर रेस्ट करने जाते थे। तो ये जो संदीप घोष कमीने ने ये पूछा ना किसने कहा था उसको वहाँ जाने के लिए, उस कमीने ने ये क्वेश्चन करके उस विक्टिम को मतलब उस बच्ची को जिसके साथ इतना गंदा एक हादसा हुआ है उसके लिए वो बोलता है कि किसने कहा था उसको इतनी रात को सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने के लिए। ऐसी गंदी बात करी थी। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो शोना मुखर्जी है उसने ये कहा कि रात को 2 बजे वो लोग 4-5 जन जो साथ में डिनर कर रहे थे, वहाँ पर एक इंटर्न थी, लेडी इंटर्न, उन लोगों के बीच में बहुत झगड़े हो जाते हैं उसके और इसके बीच में। एंड इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे को लाइक होता है ना कि धमकी दिया देख लेंगे काइंड ऑफ, ऐसा बहुत ही घमासान झगड़ा हुआ। जिसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि 6 महीने से तो बहुत कुछ तांडव हो ही रहा था। अब उन लोगों ने ये कह दिया कि एक लड़की ने कहा कि जाओ तुम रेस्ट करो, अपना सेमिनार हॉल में जाओ। एंड उस रात को और कोई नहीं था उस सेमिनार हॉल में, क्योंकि सबको कह दिया गया था अभी कोई सेमिनार हॉल में जाएगा नहीं, आज दिन है, घटना घटेगी, तो आज वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, आज अकेले वो रहेगी वहाँ पर। अब यहाँ होता क्या है, वो बच्ची वहाँ पर रेस्ट करने जाती है एंड लगभग 5-6 जन या 7-8 जन, नॉट अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है कितने लोग, लेकिन 4-5 जन तो पक्का थे ही। एंड वो लोग जाते हैं एंड उसमें ये लेडी इंटर्न भी शामिल है। और कहा जा रहा है कि 2 लोगों ने, एक ने दायां और एक ने बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां और एक ने बायां पैर पकड़ा और दोनों पैरों को चीर दिया। मतलब इतना ज़ोर से खींचा गया, इतना ज़ोर से खींचा गया कि पेल्विक गर्डल जो होता है वो फट गया।
पेल्विक गर्डल फट गया। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ नहीं थी, कुछ लड़के भी अंदर गए थे। एंड पेल्विक गर्डल फट जाता है, थायराइड की जो गर्डल होती है वो फट जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। एंड सॉरी, मेरे में ताकत नहीं है इतना। एंड उसके बाद उसे मारा जाता है, उसकी पीठ पर बूट लेकर चढ़ चढ़ के उसको मारा जाता है। उसके चेहरे पे निशान मतलब इतना खरोंचा जाता है, उसके चश्मों को तोड़ दिया जाता है, उसके चश्मे अंदर तोड़े जाते हैं उसकी आँखों के अंदर, ताकि आँखों के अंदर वो कांच चले गए, आँखें फट गई और गला दबाकर मार दिया गया और बोन्स तोड़ दिए गए, उसके हाथ पैर के बोन्स तोड़ दिए गए। अब यहाँ पर और एक एंगल बताया जा रहा है कि फिर वो लोगों ने संजय रॉय के पास वो जाते हैं जो पीकर बैठा हुआ था, और उसको कहा जाता है कि जा, तेरे लिए एक रखा हुआ है, जा तू जो करना है वो कर। और यहाँ पर इस वॉइस नोट में यही बताया गया है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। कल, शायद आज की ही बात है, आज या कल की बात है, कोलकाता कमिश्नर जो है मिस्टर गोयल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सम मिस्टर गोयल, जो हमारे कोलकाता के कमिश्नर हैं, उस कमिश्नर ने ये कहा गुस्से में, ही इज़ इन वेरी मच गुस्सा, कि मीडिया वाले एक बड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं, मीडिया वाले हमारे पुलिस वालों का नाम उछाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को ये काम नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले सारे सबूतों को मिटा रहे हैं, पुलिस वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम ही ने तो संजय रॉय को पकड़ा है, संजय रॉय हमारे बैरक में सो रहा था, हमने उधर से उसे पकड़ के हमने ही तो उसको गिरफ्तार करा है। और हम ये नहीं कहते हैं कि ये गैंग रेप नहीं है, ये सिर्फ संजय रॉय ने किया है, हम दूसरों को भी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जहाँ मिलेंगे। बट उनके साथ साथ उसने एक इंटर्न का नाम तक लिया, जिस इंटर्न का नाम लीक कर दिया जा रहा है अभी। उस इंटर्न का नाम लेते हुए ये कहा कि हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्या इस बच्ची को ये सब करने के टाइम में आप लोगों ने ये क्लैरिफिकेशन सोच के रखा था कि वो कितनी गरीब थी, वो मिडिल क्लास थी या नहीं? क्या इस तरीके से आपने सोच के उसके साथ ये हादसा किया था? बॉस, जो इंसान गलत काम करता है ना, वो गलत है, वो पैसे वाला है, गरीब है, भिखारी है, जो भी है वो गलत है। उसके लिए ये नहीं सोच सकते हैं कि उसके पापा क्या कर रहे, उसकी मम्मी क्या कर रही, उसने क्या किया, वो मैटर करता है। तो वो इंटर्न अगर आपको पता चल गया है, उसका नाम लिया गया है, तो शक के बयान पे भी आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं पूछताछ करने के लिए। बाय द वे, हमें भी कानून इतना आता है समझने। 4.5 साल हो गए सुशांत का केस हम लोग फॉलो अप करते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें भी याद है और हमें भी पता है कि कौन क्या कर सकता है। एंड ये कमिश्नर जो इतना चिल्ला के करके चिल्ला के अपना गुस्सा जो दिखा रहा है मीडिया को, तो अबे ओए शांत, ठंड पा ठंड। इस भाई साहब के बारे में आप लोग को बता दूं कि क्यों ये जो कांड करने वाले ये जो राक्षस होते हैं, ये भक्षक, ये रक्षक के नाम पर ये भक्षक जो हैं, इन लोगों को गुस्सा क्यों आता है? बहुत पुरानी बात है 2013 की, जहाँ पर एक रेप केस हुआ, रेप करने के बाद मर्डर हुआ। एक 12-13 साल की एक छोटी बच्ची, जिसको 2 लड़कों ने बहला फुसला कर एक जगह पर ले जाते हैं और उसके साथ दर्दनाक ब्रूटली रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं उसके साथ। और यही नहीं, उस बोलने में भी मुझे अजीब लगता है, रेप करने के बाद, ब्रूटली रेप करने के बाद शायद कुछ बॉटल्स तोड़कर उसके वजाइना में डाली गई और
उसके बाद उसका गला दबाकर मार दिया गया, एक-एक हिस्से को तोड़ा गया, किसी शरीर को काटा नहीं गया, तोड़ा गया। एंड ओह माय गॉड! और शरीर के हिस्से ऐसे तोड़े गए और उसके बाद होल किए गए शरीर पे, जगह-जगह पर होल कर दिए गए और उसके अंदर एसिड डाला ताकि शरीर के जो हिस्से हो वो गल जाए, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो गल जाए। और ये करने के बाद जब वो लोग निकल रहे थे तो उस बच्ची का जो भाई था वो पास हो रहा था और ये 2 लोग निकलते-निकलते ये कहते हैं कि आज तो मज़ा आ गया, आज तो दिन बन गया। और उस भाई को ये चीज़ कान में जाती है, अजीब फ़ील होता है उसे, कैसा क्या हुआ? तब उसे पता चलता है थोड़ी आगे जाकर कि अरे ये जो गंदा बोल के गया है, वो मेरी बहन के लिए बोल के गया है, मेरी बहन अब नहीं रही, मेरी बहन के साथ इतना गंदा हादसा हुआ है। और ये लोग कुल मिला के कुछ 9 जन ने उसके साथ गैंग रेप करा था, 9 जन ने उसे नोच खाया था, उसके शरीर के हिस्से करे थे, उसमें एसिड डाला था, उसे उसके शरीर में फूक काँच की बोतल के टुकड़े डाले गए थे, व्हाट नॉट। 9 जन में से सिर्फ 2 जन पकड़े गए। ऐसे तो 9 के 9 जन पकड़े गए थे, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ये जो कमिश्नर है, उस टाइम में वो सीआईडी था और इस केस को वो फॉलो अप कर रहा था। ही वाज़ हेडिंग दिस केस एंड उसने क्या कुछ किया होगा आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, कितने पैसे खाए होंगे, कितनी जेबें गरम की होगी। उस वजह से 2 जन खाली रह गए और वो 2 जन ने सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया और बाकी के 7 जन हैं उनको बाइज्जत बरी करके छोड़ दिया गया। कैन यू जस्ट इमेजिन, जबकि सारे सबूत थे, सब कुछ था, बट ऐसा कुछ हुआ एंड इतना लेटेंसी हुआ। ये सारे केस में बहुत लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सारे केसेस में जितनी लेटेंसी होती है उतना जो सबूत होता है वो सारे सबूत मिटते रहते हैं, क्योंकि ये बॉडी पर निशान, ये सारा कुछ तो बॉडी के साथ ही चला जाता है। जो पोस्टमार्टम होता है वो बहुत ही स्टेज में इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो सीमन पाया जाता है वो सीमन से आई गेस डीएनए होता है, उसकी चोटों के निशान से आप डीएनए करवा सकते हो। कितने लोग हैं इस हादसे के पीछे वो पता लग सकता है। बट यहाँ पर ये जो कमिश्नर है इसके ऊपर ये पूरी बात दिखाते हुए सीबीआई को ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि कोर्ट में बताया जाता है कि क्यों हम इस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसे इंसान सीआईडी में थे और इस केस को वो इस कदर लेटेंसी प्रोवाइड किए थे कि जो मुजरिम है उन्हें बाइज्जत बरी करा गया था। तो क्या ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? तभी हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र होगा। और इस चीज़ का गुस्सा इस बंदे को अभी बहुत आ रहा है और वो कह रहा है कि हमारी डिपार्टमेंट ने सब कुछ किया, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस अभया केस, निर्भया केस, और इस केस को नाम दिया गया अभया केस को ठीक करने के लिए हम जी जान कोशिश कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये गैंग रेप हो ही सकता है। वी आर वेटिंग फॉर द साइंटिफिक प्रूफ्स। ब्लडी हेल, साइंटिफिक प्रूफ ने बता दिया है, वहीं पर पोस्टमार्टम ने बता दिया है, डॉक्टर ने बता दिया है दैट दिस इज़ अ गैंग रेप, इट कैन नॉट बी डन बाय ओनली वन पर्सन। एंड दूसरी बात, इस वॉइस नोट के बाद की एक बात बता रही हूँ, जहाँ पर यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें मेरी कानों में आ रही है कि ये जो गैंग है वो तो समझ में आया, जैसे कि शोना मुखर्जी ने कहा कि यहाँ पर 4-5 लोगों से ज़्यादा लोग उधर थे और उन्होंने उसे मारा, उसे इस कदर उसका शोषण करा। एंड उसके बाद संजय रॉय को बोलते हैं कि जाओ सेमिनार रूम में तुम्हारे लिए ये रखी हुई है, जितना जो करना है करो। और उनके कहने के मुताबिक वो एक शव हो गई थी, बट आई एम सॉरी, आई डिनाई इट। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, बीइंग एन औरत, बीइंग अ वुमन, हो सकता है मुझे वो चीज़ों का उतना ज्ञान ना हो, बट मैरिड वुमेंस, आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पर मैरिड वुमेंस तो बहुत सारी होंगी जिनको आई एम बीइंग बोल्ड, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट यहाँ पर पूछना ज़रूरी है। आप सबको पता होगा
कुछ साइंस स्टूडेंट्स भी होंगे, प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ तो। जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी डेड बॉडी जो होती है वो ऑर्गेज़म नहीं कर सकती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं शायद वर्ड्स गलत बोल सकती हूँ, बट आई यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ जो उसकी बॉडी से सीमन की मात्रा थी, जो सीमन मिला था उसकी बॉडी से, वो एक बार इजैकुएट करने से नहीं आता है, वो बार बार 4-5 बार 6 बार इजैक 4-5-6 बार इजैकुएट करने के बाद, कॉर्पोरेशन करने के बाद निकलता है। ऑर्गेज़म वैसे नहीं हो सकता है, एक डेड बॉडी का नहीं हो सकता है। तो ये जो थ्योरी बताई गई है कि शव के साथ संजय रॉय ने ये काम किया, तो मैं यहाँ कहूँगी कि नहीं, संजय रॉय ने जो किया और जो वो 4-5 या 6-7 लोग थे, उनमें से भी जितने लड़के थे उन्होंने भी किया उसके साथ वो सब, उसके साथ वो शोषण भी हुआ है। उस वक्त हो रहा था जब वो लोग उसे मार रहे थे, उसके साथ इतना गलत कर रहे थे। पेल्विक गर्डल जो टूटा था सिर्फ छीना झपटी से, नॉट पॉसिबल। आप सबको पता, यू नो व्हाट, मैं इतनी मेरे आँख से अब आंसू भी निकलना बंद हो गए, बिकॉज ऑफकोर्स आई एम ऑपरेटेड, तो मेरे आँख से उतना आंसू नहीं निकलते। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। अगर किसको लगता है कि ये कैसा रोना हुआ, तो ये एक चीज़ है जो माइनस हो जाती है, बहुत कम आंसू निकलते हैं। तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा क्यों टच करता है, क्योंकि मेरी शादी हुई थी और मैं मानती हूँ मेरे साथ भी ये हुआ था। अगर वो इंसान वीडियो देखता है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख और याद कर तूने मेरे साथ क्या क्या किया था। तो मेरे साथ भी वो सब होता था। एक वक्त था जब मैं अपनी शादी बचा रही थी, बचाने की वजह से एक औरत अपने आप को छोड़ देती है कि भाई आपको जो करना है करो, आप मेरे साथ शादी बचा कर रखो। लेकिन एक पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ पर वो लड़की टूट जाती है। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मैं बहुत ज़्यादा पत्थर हो गई थी, और उस वक्त मैं नकारती थी। मुझे नहीं चाहिए था, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ वो रिलेशन नहीं चाहिए था। तब मुझे मारा जाता था, मुझे पीटा जाता था 2-2 घंटे तक। तब मैं अधमरी हो जाती थी, जिसके बाद उसे जो करना था ना वो करता था। इट वॉज सो ईजी फॉर हिम, बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ वुमन। शादी हो गई तो हस्बैंड जो करना चाहे वो नहीं कर सकता है, इट इज़ नॉट अलाउड। तो वो मेरे साथ होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ का एहसास है कि क्या फीलिंग होती है, क्या फीलिंग हो सकती है, वो एहसास है मुझे थोड़ा सा। तो उस वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा अंदर से टूट जाती हूँ और मुझे महसूस होने लगता है कि कितना दर्द होता होगा बहुत ज़्यादा। एनीवेज, वहाँ पर ये बात होती है। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ कि संजय रॉय, जिसको लगभग 3:45 बजे CCTV में दिखाया जाता है कि वो एंट्री ले रहा है, और लगभग 4:37 को वो निकलता है, लगभग 40-45 मिनट तक वो अंदर है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो संजय है वो वेलफेयर कहाँ पर कुछ आई डोंट रिमेम्बर द नेम, सरजा या कुछ ऐसी जगह पर वेलफेयर एक मीटिंग थी जहाँ पर वो 3 दिन के लिए गया था, और 8 तारीख को वो सुबह सुबह आया था। सुबह सुबह आता है और एक पेशेंट से पैसे लेकर उसे बेड दिलवाता है और उसको एंट्री दिलवाता है, और वो पेशेंट को देखने आता है 11 बजे 8 तारीख को रात को 11 बजे वो देखने आता है, जिससे वो पैसे वैसे लेकर उसे बेड दिलवाता है और उसके परिवार से बात करता है। फिर वो 1 बजे आता है और उसके जो परिवार में और एक जो मरीज़ के साथ रहता है उसके साथ वो दारू पीने जाता है, और वो लोग पिछले हिस्से में, हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जाकर दारू वारू पीते हैं, और फिर करीबन 2-2:30 बजे वो इंसान चला जाता है। एंड ये सारे हादसा होने के बाद जब जैसे कि बताया जा रहा है कि ये लोग आए थे और संजय को कहा गया था कि जाओ तुम सेमिनार हॉल में, तुम्हारे लिए कुछ है, वहाँ पर जाकर जो करना है तुम करो। तब संजय रॉय वहाँ से निकलकर
लगभग 3 साढ़े 3 के बाद वहाँ पर सेमिनार हॉल में जाता है एंड ये सारा कांड होता है। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर गैंग रेप है, अगर मर्डर है, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये है, सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज आती है वो कोलकाता पुलिस के पास है। कोलकाता पुलिस अभी तक वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सीबीआई तक को भी नहीं दी। क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों? दूसरी बात, जबकि उसे दे देनी चाहिए। आप ममता बनर्जी ये कहती है ना कि सीबीआई के आमी पूरा साहाଯ୍য করব, ये করব, तेन করব, फैन করব, ब्लडी कुछ नहीं हो रहा है। वरना फर्स्ट काम ये होना चाहिए था ममता बनर्जी कि आप अपनी पुलिस टीम को कहो कि सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है जहाँ पर ये कमीने संजय को दिखाया जा रहा है वो पूरी की पूरी फुटेज विदाउट एनी कट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो चीज़ हाथ में धर दो सीबीआई के। और मीडिया को भी जानी चाहिए, मीडिया को भी जानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज की प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर कुछ छुपता नहीं है। तो ये दोनों को ये चीज़ जानी चाहिए, सीबीआई और मीडिया को भी ये मिलना चाहिए, न्यूज़ चैनल्स को मिलना चाहिए वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज। क्यों नहीं अभी तक कोलकाता पुलिस ने वो सबमिट किया? दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये मैं काफ़ी सारी वीडियोस, किसी ने मुझे कहा है कि तुम्हारी आंखें तो बड़ी अच्छी है, तुम जब वीडियोस देख सकती हो तो तुमको क्या प्रॉब्लम है लाइब्रेरी की, तुम बुक्स क्यों नहीं पढ़ सकती? क्या प्रॉब्लम है लाइब्रेरी में तुम बुक्स पढ़ने के लिए 1 साल का 400 रुपया नहीं दे सकती? जब ये कहा जाता है मुझे, तब मैं यही पूछा मैंने कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये जो क्वेश्चन कर रहे हो वो सही है, जिसके 8 ऑपरेशन हो चुके हैं आँखों के, और वो इंसान अपना टाइम पास करने के लिए पूरे दिन में अकेले अकेले क्या करे, उसके साथ कोई नहीं रहता, वो अकेले रहती है, तो टीवी नहीं देखेगी? वो टीवी नहीं देखेगी, थोड़ी सी वीडियोस नहीं देख सकती? और कुछ भी देखने के लिए मुझे चश्मे लगातार, मेरी जो दोस्त है मोमिता, वो मुझे मार डालती है अगर मैंने चश्मे नहीं पहने होते हैं, तो क्योंकि वो समझती है, वो जानती है कि मेरी आंखों में कितनी तकलीफ़ है। थैंक्स टू हर कि अब मुझे आदत पड़ गई है। एंड मैं सारा दिन ऑलमोस्ट चश्मे लगाकर यहाँ पे देखो मेरे को काला काला ही हो जाता है। मैं सारा दिन, क्या इंसान अपने थोड़े से भी एन्जॉयमेंट ना कर सके? तो वहाँ पर मुझे ये पूछा जाता है कि अरे लाइब्रेरी में ज्वाइन करना है, 400 रुपये की फ़ीस है ईयरली। तब मुझे गुस्सा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इंसल्टेड फील होता है कि यार तुम कैसे क्वेश्चन कह रहे हो, जिसकी आंखें ही नहीं है वो लाइब्रेरी में बुक कैसे पढ़े? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तुम तो वीडियोस देख सकती हो, तुम तो टीवी देख सकती हो। तो हाँ भाई, आपके लिए मैं ये आंसर देना चाहती हूँ, येस मैं वीडियोस देखती हूँ, येस मैं टीवी देखती हूँ, बट मैं फालतू चीज़ें नहीं करती। मैं वीडियोस देखती हूँ क्योंकि ऐसी ऐसी क्राइम चीज़ें हो रही है ना, उसको फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके हम वीडियोस बना सकते हैं। तो ये आपके लिए आंसर था। तो एनीवेज, दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये संजय रॉय जो है, उस दिन जो पाया गया, जो ब्लूटूथ कनेक्शन, ये जो जितनी स्टोरीज़ बनाई गई है, और ये सब चीज़ को ढांकने के पीछे जो 4 5 6 जो बचाने के पीछे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी किया गया। क्योंकि जैसे कि वो वॉइस नोट में भी आपको सुनाई दिया कि खूनी काम करने के बाद जब वो लोग हाथ पैर धोने जाते हैं, तो सेमिनार हॉल के वही 50 मीटर की दूरी पर एक हाथ पैर धोने की जगह थी, एक वॉशरूम जैसा था वहाँ पर, जिसको तोड़ा गया, जिसको आधा तोड़ दिया गया। क्यों? ताकि वहाँ से कोई सस्टेन ना मिले, कोई प्रिंट, कोई स्टेन ना मिले, किसी तरह का सबूत ना मिले। इस वजह से कंस्ट्रक्शन की तैयारी की गई, जो कि अब स्टॉप हो गई, क्योंकि प्रोसेशन प्रदर्शन जो बच्चों ने, डॉक्टर्स बच्चों ने जो करा, इसके लिए जो विरोध किया, उसमें वो चीज़ बंद हो गई। वरना आप सोचो कि सीबीआई को ये केस देने के उसी रात को एक मॉब निकलता है, जिसको हम बोलते हैं दंगल, और 100-150 लोगों की जो भीड़ आती है, और वो हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करने आती है, स्पेशली उसी एरिया में जाती है जहाँ पर ये कांड होता है। इमरजेंसी एरियाज़, फिर आपका सेमिनार हॉल वाली एरियाज़, और स्पेशली जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की तैयारी, जहाँ पर किस रिजू दत्ता ने कहा ना, हमरा एक वॉशरूम बनाते चाइछिलाम,
हम एक वॉशरूम गर्ल्स के लिए बनाने की कोशिश कर रहे, तो अभी बनाना था जब केस हुआ है, इतना बड़ा केस हुआ है, उसी दौरान तुमको वॉशरूम बनाना था। वाह भैया वाह। और ममता बनर्जी का तो खासम खास है संदीप घोष, खासम खास, पता नहीं किस तरह का रिलेशन हो सकता है, आप ही सोचो किस तरह का रिलेशन। और ये संदीप घोष, उसकी 2 बीवियों का कांड हुआ है। जी हाँ, संजय रॉय की 4 बीवी, चौथी बीवी कैंसर पेशेंट थी बेचारी, वो गुजर गई, मुक्ति मिल गई उसको, मैं तो कहूँगी। और इसकी 2 बीवी ऑलरेडी है, अब तीसरी आई है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट इसके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियाँ मिल रही है कि संजय ये कौन है, संदीप घोष अपनी बीवी को 14 दिन का बच्चा जिसका हाथ में है, उसकी स्टिच नहीं खुली है, उसको उसने पेट पे लात मारी थी, ऐसी मारी थी कि उसकी स्टिच खुल गई थी और वो खून खून हो गई थी। तो ऐसे गंदे, ऐसे वैशी, ऐसे दरिंदे ऐसी हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस हुए हैं। 2001 में सुब्रतो विश्वास का केस हुआ है, जिसके ऊपर जिसको सुसाइड बताया गया, उसके बाद पता चला इट वाज अ मर्डर। सो आरजी कौर इज़ वेरी फेमस फॉर ऑल दिस ब्लडी थिंग्स। सो यहाँ पर अब वी वांट जस्टिस फॉर अभया। इसका नाम तो हमें अलाउड नहीं है बोलने का, हमें मीडिया वालों को बताया भी नहीं गया है। रेपिस्ट का चेहरा एकदम संजय दत्त जैसे एकदम बॉय बॉय वाला लुक देखा है ना आपने, टीका वीका लगा के, उस बंदे का एटीट्यूड देखो, मार दो मुझे सूली पे चढ़ा दो, मैंने ही किया है। वाह 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 वाह, ऐसे लोगों को अपॉइंट करता है कोलकाता पुलिस, ऐसे लोगों को अपॉइंट करता है जिसकी इतनी गंदी केस हिस्ट्री है, हाँ, उनको अपॉइंट करता है। वाह कोलकाता, वाह 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 पुलिस, तेरा तो जवाब नहीं। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है। सीबीआई के हाथ में केस चला गया है और पता ये भी चला है कि संदीप घोष के साथ इंटेरोगेशन बहुत जल्दी हो रही है इनफैक्ट, एंड और भी होगी। सो लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर अपडेट एज वेल, एंड प्लीज़ लिसन टू दिस वॉइस नोट वेरी केयरफुली। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, एंड आज भी इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मुझे, ताकि मैं मेरी वीडियोस को दूर तक पहुंचाऊं। लंबी हो जाती है वीडियो, बट सच्चाई कड़वी होती है और थोड़ी लंबी भी होती है। बाकी जय हिंद।